Hello. Yes. So can you listen, Sujit? हाँ, सुन जाओ. Sujit, can you listen? Unmute. Yes, sir. ठीक है. So, we are looking this policy gradient and policy gradient issues and so on. So where is the algorithm? This is directly that is yes. Yes. So what was happening that we have got a trajectory. So you all remember, right? So what we are trying to do is that our tau is our trajectory, and we initialize and play multiple games, and then we see that what is the gain or the amount of reward that you can get. Now the point will be that that what you want to do, you want a theta. So now we wanted to talk about the space in which we have multiple different policies, and out of that every theta is going to represent one policy. What we want is that how can we get a policy which is the best one. What does that mean? It means that the policy is going to give us the maximum DCFRs. There is one way by which you can say that in such a case you just do the average, and that is my thing. But usually it's not going to be the average, because it's going to be dependent upon the theta, that whether that policy, whether that trajectory is going to be accepted. Not for each and every trajectory I am going to utilize the reward completely. It depends upon that what's the amount of probability by which. So essentially our interest is that what is the expected value of this reward, what is the expectation of this reward. And then we have shown that, okay, basically we wanted to maximize this j theta, and we want to get that theta by which we are going to have the maximum j theta, that is our theta asterisk. How can we get that? So your j theta is essentially this, because that's the formula of your expectation. That's the amount of reward and the probability by which this trajectory is going to be selected given that theta. That's the formula, and that's the backward pass. So when you do the backward pass, basically the gradient of this, because you have to find out the gradient of this loss function, it's actually a gain function. So even if you do a gradient optimizations, I mean stochastic gradient descent, so you can take the maximum of it, or instead of, so if you take the max, if you want to do maximize, one way is that you make it minus and then do the minimization. Other thing is that theta gradient descent, instead of that we apply gradient ascent, which is that theta is now theta minus. So instead of minus, it may start to have a plus sign. So what we have seen is that if you do the gradient of this, r theta is anyways not going to be dependent upon theta, because that is not the that's actually coming from the environment. It's not depending upon the theta itself. So basically, if you change theta, what do you want to see, that how this thing is going to be changed? But this is not dependent, so only this guy is going to be changed. That's going to be delta theta, and the derivative of this. And the point is that it's actually a gradient of expectation. So gradient of expectation is like that you'll have to get the the gradient has to be computed over an expectation, and expectation is actually a stochastic process. So if you have a stochastic thing and wanted to apply, that becomes interactable. So the trick is that very simple trick, as we have discussed, that the gradient of this such thing is going to be multiplied by and divided by both of these, and this can actually be now seen as the probability, that the log likelihood of that trajectory multiplied by this is not the log likelihood, so I'm sorry, this is the log likelihood. This is the probability of that trajectory under that theta,
And that's the log likelihood of that. And then finally we have seen that your delta theta j theta is going to be an expectation of this. So this is not an expectation of gradient. So you take something, make out a gradient, then make out a gradient, then make out a gradient, then make out a gradient, and then add. So that is the expectation. So this is the way we wanted to do the thing. But still there are certain issues directly coming on to the issue. Now the issue is that still you require this guy. Here you require this guy. Now what's the problem with this guy? See, you have an agent, you have a theta. You take that theta, and this the logic of this agent is that keep on asking that theta, hey, tell me what to do, tell me what to do. That's my policy. So you keep on playing the game. So you can play a game. But the point is that why this guy is going to be problematic, because this is known. It's a function. You play and you get your reward and say, show me your reward. That's your reward. That's okay. It's not a problem. Problem is here. What it is, let us see. Let us take any theta 1. I'm just talking about some theta 1. That's one trajectory. I said that take that theta, whatever theta, some fixed theta, play a game. You get a tau. That's your tau 1. Probability of tau 1 given that theta is going to be equal to the transition probability of S0 A0. Given S0 A0, you are reaching to S1 multiplied by what probability at this state you have taken this action, and you have to do it for all the transition in that state. Now that's the problem. The problem is that to compute this, you require this. And what is this? This is the transition probability. Transition probability is coming from the environment. So if you want to play a game, you need to know the dynamics of the game. But not only the dynamics, you require the full model. That is why if you require this means that you need to know the complete MDP of that game, which means that you require the full model. And if you are using this, if any algorithm requires this, you need to know for every state, if I take this action, what is the probability that I am going to be into this state? How can you compute that if you have a huge amount of states, practically infinite amount of states? No, so we will talk about that, but I'm just telling you one by one. Yeah. So that is the issue over here. So we need to understand that, okay, if that's going to be utilized, that's going to be a model full algorithm. And this can only be possible where there is simple game in which very few amount of states are there and few actions are there. And for every action, you know that if I take this step, is this action where you are going. Maybe it is true and utilized when you are doing that grid, simple grid, because only 4 things, this. So at every state, you know that where you are going. So this is almost certain. But that's a very, very simple TOA example. Most of the time, this is not known. What is this? This is okay. We have this because that is my pi. That's the theta. You give me theta, I ask that, hey, S0, tell me. A0, what's the probability? A1, what's the probability? That's your pi. What is that? This is my network, the output of my network. What is this? This is coming from the model. You need to multiply both of them. That's an issue. So we have taken the log. This becomes plus and plus. And then if I take the gradient of this, you understand this thing is completely independent. It's not going to be changed. If you keep on changing theta, it's not going to change. And if it's not going to change, the derivative gradient is anyways going to be equal to 0. Only this guy is going to be active. It's being shown over here. Now, what we understood that if you want j theta, what does that mean? If I give you a theta and I say, hey, you tell me your j theta, you require MDP model to give me the whole j theta. But then somebody came and said, hey, I don't want j theta. I don't really want j theta. I'm only interested in the gradient of that. Gradient doesn't require that. And because we never
we do not want to compute the loss. We wanted to know that this loss, if got differentiated with respect to theta, what is that value? This is that value. This. But sir, we really wanted to change in theta. एक मिनट सॉरी गलत बता दिया था ये this is the already shown thing, this is our final thing. I'm sorry, this is your final thing, because this is the log thing of the pi, this is anyways multiplied, and it was having another plus term of log of t, but that because after derivation differentiation, but that log of t is going to be not utilized because that's not anyways going to be dependent upon theta. So this is happening actually. अब तुम पूछो. Actually, we don't require j theta at all. No. So, but we are having already theta. Hmm. So we can check the things. So I got confused. Now it's fine. Now it's fine. Yeah. Understood. So that is the point. I do not want the actual j theta. I only wanted to know that if I change my theta, how my j theta is going to be affected, because by which I am going to back propagate. So that is why we have shown that, hey, this guy requires this thing. We somehow tweaked this and we got the same thing, j theta's derivative or the gradient equal to this guy. And now you see what is over here. What is this? You know. What is this? This is the output of my network. You just take the output of your network, multiply with log. What is this? That's the derivative of that. Your network is going to do the differentiation of this. Keep on adding. Multiply with r tau. You are done. Yes, this is what anyways we have seen. Now let us. So this was the revision. But anyways, there is a big problem. What's that big problem? First of all, what this actually mean? Let me show you. What does this actually mean? So this actually mean that if I play a game like this is one trajectory. S0, A0, R0, S1, A1, R1, S2, A2, R3, S3, A3, R3, S4, A4, I4 terminate. You have got a so for this trajectory, your final reward is say R tau. For this trajectory, you got a reward R tau. What is going to be this value? So this is anyways not going to be expectation, because right now we are only taking 1 tau. I take 5 tau, 50 tau, 100 tau and do the average, and that's the thing that we have written over there. Right now I'm only using single tau. For this single tau, what is going to be here? What is going to be here is that at S0, if I take A0, what is the probability? My network is going to tell. So you have a network theta. You give it S0, A0. You give it S0 and the corresponding A0. This network is going to tell you that what is the probability. Take a log of that. Take a log of that. Its derivative is going to be, so you are going to do what? Del of log of, maybe written over here, don't see this. Del of log of pi theta, A0, S0, A1, S1, A2, S2, A3, S3, and so on, and multiply it with R tau, single R tau. That's a full final loss of this trajectory. Same for all, right? No, you said that is actually the same for all. That is the thing that I just have shown you. That's anyways been written over here, R tau. For tau, selected from here, sampled from here, single R tau. Now, R tau 1 multiplied by all the transitions that you have, log of that, keep on adding and multiply R tau to that, R tau 1. Then R tau 2 multiplied by the second transition, a second episode, third episode, fourth episode, and within every episode you are adding what? The log probability
of the actions that are being suggested by your theta network. That's the problem. And the problem is that here you have got a good loss, good value. India got 1. Here Tendulkar was playing and he scored a century. Last run made by Ashish Nehra. And we are giving equal amount of weightage to all of them. Right? Equal amount of weightage to all of them. R tau 1, R tau 1, R tau 1, R tau 1. Everyone is going to get the same amount. But later, somebody said, hey, Tendulkar has to be the man of the match. If that is the case, we are doing something different for each of them. That is, if I take equal same thing for each and every transition, which essentially means that we are not doing a proper credit assignment. Then comes the second idea, which is called as reward to go. Any action at a particular state is only as good as the amount of reward that you are going to get after. It doesn't matter Tendulkar is having highest or the biggest run scorer. But if on that match he has made 0, he is not going to get any reward. And Dhoni has got more run. Even Ashish Nehra has scored the half century. He is going to get more reward. What does that mean? It means, so before that, let us understand what this guy was doing. This guy was essentially taking that at this state, what's the action, and scaling it with R tau. Scaling it with R tau. It is saying that, hey, what's your probability? This is the probability log value of that and multiplied by R tau. So so every action which is being suggested, by my network is going to be scaled by R tau, which is a fixed thing. And if this is high, all of these actions will be boosted up. That okay, at this state you have to take that action, at this state you have to take this action, at S2 you have to take A2, at S3 you have to take A3 with respect to this. This probability got boosted up. Why? Because R tau is high. Why? Because after doing this I've got a very high reward, but no credit assignment. It may be the case that this and this, they were wrong. By chance you have got a high reward. Opposite is most of the time true, that several actions are really good, but still you lose. And what will happen is that most of your actions, most of your states, the actions were good. Because you lose, that probability got down. That you don't want, because you are learning pi. What is pi? At this state, what's the action? That is the thing I am learning. And then I say that, hey, at S5, I have to take A5 and then I lose. It's very bad. You should not be taking S5, pay A5. Probability got reduced because you're back propagating. But not only S5, pay A5 probability is getting reduced, S4, pay A4, S3, pay A3, S2, pay A2. All of them are getting down. It may be the case that initially it was good. So that is the problem of credit assignment. How to solve that? How to solve that? Instead of giving the same thing to each and everyone, let us see that at this state, if I take this action, how much amount of total reward I'm going to get. That is G0. What is G0? R0 plus gamma R1 plus gamma R square R2, gamma cube R3, gamma 4 R4. So that's actually the reward to go. What is the reward to go for R4? R4 is R4 because you got terminated. You have taken action. You got terminated. You have got R4. R3, your reward will be R3 plus gamma times R4. R2, it will be R2 plus gamma times R3 plus gamma square times R4. And what is G0? It's being written. That is reward to go. So in this way, what is going to happen is that you
are at least started to give a state that, hey, at this state, if I take this action, how much amount of reward you are going to give me? It may be the case that certain states may say high, certain states may say low. Now it's not a fixed single thing for each and every state. Anyways, Sir, are we giving the equal weightage to each? Sorry, higher weightage to R4? So that will depend upon if R4 is high or low, and we are not giving weightage to R4. We have to give weightage to S4 पे A4 को. The weightage is given by R4. Understand what is policy? Policy is saying at this state what action. Your pi is telling at this state what action. Is it good or bad? Who is going to tell? S4 पे R4 अच्छा है खराब है. Who is going to help you? You need to check that कितना मिला. R4 मिला. S3 पे तुमने बोला S3 पे अगर A3 लिया, then R3 plus gamma times R4. That is the reward to go. Is it good or bad? That is the thing that I want. ठीक है, आप बात समझे? In starting, we took suppose we are taking one trajectory. Then we apply same rule there and then take log. So that will make sense. Or मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, डोंट वरी. क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ, तेंदुलकर ने 100 रन बना दिया, इंडिया जीत गई. सबको एक बराबर पैसा नहीं देना है. तेंदुलकर ने 100 रन बना दिया, अब उसके 100 रन हट गए, खत्म. अब ये बताओ कि तुम आए, तुम्हारे बाद कितना रन बना, पता 25 रन बना, तो 25 के हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें. दैट इज रिवॉर्ड टू गो. अच्छा 25 भी अब चला गया, अब अगली बार अगली स्टेट वो कह रहे हमने तो 5 ही बनाए, तो उनको 5 के हिसाब से पैसा मिलेगा. लास्ट ग्रुप गया, उसने 1 रन बनाया, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा. लेकिन लास्ट ग्रुप तेंदुलकर आया, तेंदुलकर ने खेला, उसने बनाया 12 रन. रिवॉर्ड टू गो से टोटल पता चला कुछ, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंगली ही इज गोइंग टू गेट. लास्ट बंदा उसने 25 रन 40 रन बनाया, ज्यादा इनाम मिलेगा. दैट इज रिवॉर्ड टू गो. हाउ गुड अ एक्शन एट अ पर्टिकुलर स्टेट इज, who is going to tell that my reward to go, not the immediate reward to go. yes, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ क्यों लिख दिया. ठीक है, ठीक है. Okay, so let us take that algorithm. Initialize the network, generate the trajectories, compute the returns r theta, r tau. अभी ये r tau में ही मुझे खेलना है बहुत सारा. तो अभी ये बेसिक प्लेन रेनफोर्स एल्गोरिथम है जो कह रही है r थीटा ले लो, एक के लिए एक ले लो, एक ट्रैजेक्टरी लो, उसका एक ही बनाओ, और ये मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट इज दैट? फॉर ऑल ट्रैजेक्टरीज वी आर हैविंग n ट्रैजेक्टरीज. फॉर ईच ट्रैजेक्टरी वी हैव t ट्रांजिशन. सो आई एम टेकिंग ऑल. कुछ दिक्कत है आपको? कोई बात नहीं है. ट्रैजेक्टरीज और हर ट्रैजेक्टरी के हर ट्रांजिशन, ऑल ट्रांजिशन, और मल्टीप्लाई करते जाओ. और ये r टाउ में देखो कहीं भी t नहीं आ रहा है, तो ये प्लेन वाली एल्गोरिथम है, तो सबको एक चीज ले रहा है. और नेटवर्क के पैरामीटर्स ऐसे अपडेट कर दो, प्लस आ गया है, पता चल गया क्यों, क्योंकि असेंट कर रहे हैं, ग्रेडियंट असेंट कर रहे हैं. और यही काम लगातार करते जाओ. थीटा जो है वो वेरी होगा. थीटा वेरी होने का क्या मतलब है? पॉलिसी बदल जाएगी. जो पॉलिसी आज है या अभी है, आफ्टर वन अपडेट policy will be changed. That is why it's an on policy method. Now here comes another important concept. What is the meaning of on policy and off policy? जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब when you're talking about DQN algorithm. DQN algorithm off policy है. देखो DQN algorithm off policy है, सैंपल एफिशिएंट भी है. ये ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम है और सैंपल इनएफिशिएंट है. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने पॉलिसी फिक्स किया थीटा, गेम खेल दिया,
फिर दूसरी ट्रेजेक्टरी बना दिया, तीसरी बना दिया, 10 20 25 50 ट्रेजेक्टरी बना लो, रख लो, रिवॉर्ड टू गो निकाल लो, लॉस निकाल लो, डेल्टा निकाल लो ग्रेडियंट, और अपडेट थीटा कर दो। जैसे ही थीटा अपडेट किया, नाउ यू कैन नॉट यूज दिस डेटा, क्योंकि पॉलिसी बदल गई। अब अगर तुम उस पॉलिसी के ऊपर काम करके उस डेटा को रीयूज करते हो, अरे वो तो कोई और पॉलिसी है, तुम्हारी तो पॉलिसी ही अलग हो गई, तो जो लॉस आ रहा है वो तो इस पॉलिसी का है ही नहीं, जिसके लिए तुम बैक प्रोपेगेट कर रहे हो। बात आई सभी को समझ में? नो? यस? आपको? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये बात समझ में आ गई। अनुष्कृत, नो, तुमको ये पीछे का मामला समझ में आया? तुम्हारी तबीयत का कुछ इशू तो नहीं? अच्छा, ओके ओके, डिस्कस कर लेना, अगर नहीं समझ फिर बता दूंगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से मैं थीटा को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, लेकिन उस थीटा से मुझे 10 सवाल पूछने पड़ते हैं, फिर उन 10 सवालों के मैं 10 जवाब ढूंढता हूं, उससे मैं लॉस निकाल के ऐसे ही इसको चेंज करता हूं, फिर मुझे 10 सवाल पूछने पड़ेंगे, और पिछले 10 सवाल नहीं यूज हो सकते। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं होता, उस पर आता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें ये 10 सवाल हर बार पूछने पड़ेंगे, और ये 10 नहीं है, 10,000 है। जितना कम पूछोगे उतना ओवरफिट हो जाएगा। लेकिन थीटा चेंज होता जा रहा है, तो सेम डेटा रीयूज नहीं हो सकता। ये बात तुरंत दिमाग में चली भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लड़की ने सही सवाल पूछा। इसका क्वेश्चन है कि सर डीक्यूएन में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि डीक्यूएन में भी तो थीटा चेंज हो जाता है। फिर तुम एक्सपीरियंस रिप्ले लाते हो, SARS पढ़ते नहीं जा रहे हो, भूल जाओगे भैया, बता रहा हूं मैं। एक्सपीरियंस रिप्ले क्या? SARS, SARS डैश, एस स्टेट पे ए एक्शन लेके आर रिवॉर्ड आया, एस डैश स्टेट पे चले गए। और ऐसा तुमने गेम को खिलाते गए। ये एक ट्रांजिशन था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक ट्रेजेक्टरी, फिर दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 50वीं ट्रेजेक्टरी भर दिया। ये पूरा एक्सपीरियंस रिप्ले हो गया। जाओ डीक्यूएन चला दो, इस पे डीक्यूएन चला दिया गया, जवाब आ गया तुम्हारे पास। तुमने बैक प्रोपेगेट किया, जो नया नेटवर्क आया उसके थ्रू फिर से गेम खिलाया, और फिर उसी एक्सपीरियंस रिप्ले में भर दिया। सोचो, पहले 10 थी ट्रेजेक्टरी, अब 10 और आ गई, अब तो अब 20 ट्रेजेक्टरी हो गई। इस 20 ट्रेजेक्टरी से सैंपल करो, काम चल रहा है, ऑफ पॉलिसी है। क्यों? थीटा तुम्हारा भी बदल गया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले यह सवाल पूछा जाए, क्योंकि ना जब तक आप ये सवाल पूछेंगे मैं तो आपको समझा दूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। जब आपने समझ लिया तो इसको, आपको ये समझ, क्वेश्चन आप पूछ सके, तब आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर ये मैं क्वेश्चन पूछ पाए तो इसका आंसर जो सर ने दिया वो समझ में आए, क्योंकि जल्दी समझ नहीं आएगा। तो ध्यान करो कि डीक्यूएन के अंदर लॉस फंक्शन क्या होता है? बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इन्फोर्स करते हो, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इन्फोर्स करते हो, और कुछ नहीं करते। अब ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने डीक्यूएन भूले नहीं है। डीक्यूएन में क्या होता है? डीक्यूएन में ऐसा होता है कि भाई एक स्टेट आती है, नहीं मैं अपने नेटवर्क कहता मुझे इसका क्यू फंक्शन बताओ, उसने मुझे क्यू फंक्शन बता दिया। मैंने कहा अच्छा ये क्यू फंक्शन तो बताया, इस स्टेट पे से इस एक्शन को लेके मैं पहुंच कहां रहा था, यहां से। अब मैं पूछता हूं यहां से फिर से, अब बताओ कि इस वाली स्टेट से उसका क्यू फंक्शन निकाल के, और फिर मैं उन दोनों को माइनस कर देता हूं और कहता हूं कितना कितना दूर हो। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी, अच्छी बात है। यहां पे लॉस फंक्शन क्या है? जे थीटा। जे थीटा, जे थीटा किसका, जे थीटा जो है ये किसका परिचायक है? परिचायक इंडिकेटिव है। जे थीटा उस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी तो हमेशा लगनी चाहिए। ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी में मैं तुम्हें कोई भी चीज दे दूं, तुम बोलो अगर तुम ऑप्टिमल हो तो लगना ही चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं, पुरानी वाली जो पुराना डेटा होगा वो और भी खराब होगा। मैंने कहा होने दो, बेलमैन तो लगनी चाहिए ना। भाई तुम क्या सिखा रहे हो नेटवर्क को? नेटवर्क से कह रहे हो तुम्हें बेलमैन ऑप्टिमैलिटी को मिस नहीं करना है, उसके लिए डेटा चाहिए, तो सारा डेटा तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तो सब में बेलमैन ऑप्टिमैलिटी लगनी चाहिए।
हाँ, कुछ में गंदी तरीके से लग रही होगी क्योंकि बहुत बहुत दूर होंगे, धीरे धीरे नेटवर्क ट्रेन होकर के पास पास आने लगेगा। बट बेलमैन ऑप्टिमैलिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर जो चीज है वो थीटा, जो तुम्हारा क्यू फंक्शन था थीटा, इट जस्ट हैव टू मैनेज द बेलमैन ऑप्टिमैलिटी। बट यहां तो थीटा जो है वो तो उसी पर्टिकुलर पॉलिसी के करस्पॉन्डिंग आने वाला जे थीटा है, मतलब कि रिवॉर्ड, कितना पैसा पा रहे हो उसकी बात कर रहा है। अगर वो बदल गया तो अब जो तुम लॉस निकालोगे, अगर पुराने वाले डेटा पे निकाला तो वो तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ही नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में नहीं आया? वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुरंत अगर नहीं समझ में आता है तो इस पे 3 बार सोचो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। और यूजुअली लोग ऑन पॉलिसी तो समझ जाते हैं, ये तो समझ में आ जाता है, ऑफ पॉलिसी वाला फंडे में अटकते हैं। ऑन पॉलिसी सिंपल है, समझ में आ गई 2 मिनट में। थीटा अगर चेंज हुआ, पॉलिसी बदल जाएगी, पॉलिसी बदल जाएगी, पुराना डेटा नहीं यूज कर सकते क्योंकि पुराना डेटा दूसरी पॉलिसी से चला हुआ था। उसको क्यों मार रहे हो? तुम गलत डेटा यूज कर रहे हो। अरे भाई, जो डिसीजन अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया उसके लिए आप नरेंद्र मोदी को क्यों पकड़ रहे हैं? मनमोहन सिंह डिसीजन लेके गया, लॉस निकाला, अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया, नरेंद्र मोदी आ गया। अब नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े कि वो तुमने क्यों, कहते उसने किया ही नहीं है, वो डेटा फ्लश करो। बदले इसके बेलमैन ऑप्टिमैलिटी आ गया। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी का फंडा ये, एक बंदा बैटिंग करने गया है, उसको ऑप्टिमल खेलना है, कोच वहां खड़ा हुआ है, उसने तुम्हारी पुरानी शॉटें भी रख ली, तुमने कहा पहले तुम इधर की तरफ ये वाली गेंद ऐसे कर देते हो, तुमने कहा हाँ, तो उसने कहा अब ऐसे नहीं, अब तुम्हें सीधा खेलना, तुमने सीधा खेल दिया, लेकिन वो वाला डेटा हटा नहीं रहा है, वो लेकिन तो बार बार बीच बीच में डालते रहता है और देखता है कि तुम ऐसे करते हो कि नहीं करते, तो तुम्हें तो ऑप्टिमल खेलना है ना। इस कारण से जो पॉलिसी है वहां पे पॉलिसी सीधा सीधा चेंज हो रही है, और योर लॉस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिसी। The DQN network was only being designed in such a way so that to ensure that your decisions are optimal by enforcing Bellman optimality. Bellman optimality हमेशा लगनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑप्टिमल मैंने आपको बता दिया, अगर कोई चीज ऑप्टिमल है तो उसके सारे सब प्रॉब्लम्स ऑप्टिमल है, वरना वो ऑप्टिमल ही नहीं है। बट ये वाली बात आ गई, ऑन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी, मॉडल फुल मॉडल फ्री। एक बात और होती है, उसको कहते हैं पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट और फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में फर्क है। देयर आर सर्टेन गेम्स व्हिच आर पार्शियली ऑब्जर्वेबल, देयर आर सर्टेन गेम्स व्हिच आर फुल्ली ऑब्जर्वेबल। लेट अस गिव यू एन एग्जांपल एंड probably you may tell. I am giving you game chess. Chess is partially or fully? Why? नहीं, ये नहीं है आंसर। पार्शियली एंड फुली, हाँ आप बताओ। Why? हाँ हाँ, तो मुझे हर एक चीज, मतलब मुझे पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीटली दिख रहा है। फॉर एवरी स्टेट यू डिटर्मिनिस्टिकली नो दैट व्हाट इज द स्टेट, कौन सा मोरा कहां पे है। That is partially, that's fully observable. अब ताश के पत्ते खेल रहे हैं, you are an agent playing, इसको क्या कहते हैं, playing card, that is partially observable because you cannot see कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, तो आप अपने पास ये है। अब बाकी हुकुम का इक्का किसके पास, you don't know। शतरंज में पता है कि बादशाह यहाँ रखा है तो रखा है, you know the full environment, all the states। Here you don't know। तो जैसे, तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी ना, ऑन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी, मॉडल फुल मॉडल फ्री, पार्शियली एंड फुल्ली ऑब्जर्वेबल। नाउ यहाँ पे आते हैं, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं था, टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जहां जहां पे आती जाएगी, कीप ऑन टेलिंग यू। नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद पॉलिसी, हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस किसमें? वेरिएंस ऑफ व्हाट? अच्छा, तो गीतांजलि आई मेरे पास, गीतांजलि एक एजेंट है और मैं इसका पाई हूं, ये आई मेरे पास, इसको खेलना था टीटी, तो इसको खेलना था टीटी, इसने आए मार दिया ऐसे करके शॉट, गेंद चली गई बहुत ज्यादा दूर टीटी में, तो ये आई के साथ पाई। टेल मी
मैंने कहा ऐसे नहीं करते, 45 डिग्री के एंगल पे लेके और ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं मारना है, ये बैडमिंटन नहीं है, ये नहीं मारना है, ये चलाना है, ये करना है। अगले दिन आई, पहले दिन आई इसके 100 शॉट मारे इसने, सब हवा में, पता नहीं उल्टा सीधा। आप समझे 100 शॉट मतलब 100 एपिसोड, हर एपिसोड के लिए 8 आउट जोड़ा, इनका पूरा लॉस आ गया। मतलब क्या कि ये काम मत करो, इस स्टेट पे एक्शन मत लो, ये पाई खराब है। इन्होंने अगले दिन पाई चेंज कर देने का, सर को आता है नहीं। ये चली गई राहुल श्रेष्ठा के पास। राहुल श्रेष्ठा बड़ा अच्छा टीटी खेलते हैं। राहुल श्रेष्ठा ने इससे कहा कि ये नहीं, तुम्हें ये करना है, ये करना है। इसकी 100 में से 30 शॉटें पड़ गई, ज्यादा तेज नहीं पड़ी, लेकिन जहां 0 था वहां 30 आ गया, या 5, 0 के मुकाबले तो 5 भी बहुत ज्यादा बड़ा, इन्फिनिटली बड़ा। हाँ, बट थीटा इज, तो तुम्हारा कहना है कि थीटा स्लोली बदल रहा है। यू वांटेड टू से दैट कि हाँ, ये इसका जो पाई है वो बहुत तेजी से दूसरा पाई नहीं बन जाएगा, बट जो दूसरा पाई बनेगा उसमें उसके द्वारा जो निकलेगा लॉस, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है पॉलिसी के केस में। मतलब ये पॉलिसी जो लॉस दे रही है और वो पॉलिसी जो लॉस दे रही है, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस का क्या मतलब है कि जो लॉस निकल रहा है उसका जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ग्रेडियंट दो केसों में, ग्रेडियंट का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कभी तो इसको जो इसको लॉस मिलेगा वो बहुत ज्यादा, ग्रेडियंट जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, तो एकदम से कुछ सीख जाएगी, तो अगली बार जो गलती करेगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन पिछली बार से बहुत कम होगी। और इससे फर्क क्या पड़ता है? So actually we are using policy to generate the trajectory and then computing this. This will in turn improve the policy after every iteration one by one, and returns are going to be greatly introducing high variance in the gradient. ये बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा इसमें। उसके पहले इसका वैनिला वर्जन क्या था? इसका वैनिला वर्जन था आर टाउ ले लो। दूसरा वर्जन क्या था? आर टाउ मत लो, रिवॉर्ड टू गो ले लो। रिवॉर्ड टू गो लेने के बाद अगली प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए मैं सिस्टमेटिकली बता रहा हूं, किताबों में बड़ा अजीब अजीब तरह से लिखा है। तो रिवॉर्ड टू गो इज आर टी टाउ। मतलब ये कि टाउ के टीएथ स्टेप पे जो लॉस आया, जो रिवॉर्ड टू गो है, ठीक है ना। अब आते हैं, प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि वेरिएंस बहुत ज्यादा है। अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा तो आज ये बहुत ज्यादा सीखेगी, कल ये बहुत कम सीखेगी, और अगर इतना ज्यादा मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट करेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एनीथिंग प्रॉपरली। और ये रियली आप कह सकते हो, ऐसा तो डीप लर्निंग वाले नेटवर्क में भी हो सकते हैं जो आप नॉर्मल पढ़ाते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ना एक तो एक्सप्लोरेटरी फेज में काम हो रहा है, जो इसको सिखा, इसको ये भी नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, ये तो बस जीतती है तो ही सीखती है। इसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये शॉट सही है, इसको क्या पता, इसने तो मार दिया धड़ाम से उठा के, गेंद चली गई कहीं ना कहीं, वो तो बड़ी तेज गई, इसको लगा बहुत सही है। फिर एक बंदा कहाँ मार दिया, ऐसे नहीं मारते हैं उसको, अरे उधर वाली टेबल पर टिप्पा खाना चाहिए। तो अगली बार इसने कुछ मारा, नहीं गई, फिर मारा, नहीं गई। तो जब तक ये जीतेगी नहीं तब तक इसे पता नहीं चलेगा। और जीतने के पहले बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल है। मतलब मुझे अगर एक गेंद इस टेबल पे मारनी है तो ये मुझे पता कब चलेगा? जब ये गेंद इस टेबल पे गिरेगी। ना मैंने उधर मार दिया, रॉन्ग है, उधर भी मार दिया, फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए। मैंने कहा इधर मारता, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, पता ही नहीं कि इधर जाना है। जब तक कि एक्सप्लोरेशन के द्वारा मुझे कोई धीरे से इधर एकदम से गिरा, एक बार गिरा इधर से रिबाउंड, अरे इधर ही फेंका, अब इधर। और ये जो स्पेस है, ये तो फिर भी आपको दिख रहा है कि इस स्पेस में इतनी छोटी सी टेबल पे एक्सप्लोरेटरी फेज में गिराना कितना डिफिकल्ट होगा। हाई डायमेंशनल स्पेस में तो बाप रे बाप, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और वहां पर अगर आपको कभी कभी लॉस कुछ मिला, कभी लॉस कुछ मिला, कभी लॉस कुछ मिला, तो आप और ज्यादा एक्सप्लोर, मतलब वो हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो कहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो क्या करते बताओ भाई? कोई डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है,
तो भाग गया, क्या करें उसको, उसको स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं? किससे? हाँ, मतलब उसको उसके पीछे वाले से माइनस कर देते हो, है ना? तो उसको पीछे वाले से अगर माइनस करोगे तो एक बड़ी वैल्यू आ रही है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो माइनस कर करके स्क्वायर कर देते हो, तो उसका वेरिएंस बड़ा हाई है। अब कोई चीज का अगर वेरिएंस बहुत हाई है तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे ये लड़की है, ये आई मुझसे आज कह रही है कि हमको घर जाना है, नहीं जाओ, बाहर निकली वापस है, हमको घर नहीं जाना है, मैंने कहा तो मत जाओ। फिर ये बाहर निकले, कहते हमको कल घर जाना है, फिर से जाओ, कह नहीं हमको अभी घर जाना है। आप समझ रहे हैं ये हो रहा है सिस्टम में, क्या हो रहा है इसको मैं कैसे डील करूं? आप बताओ कैसे डील करूं? मैंने कहा कुछ डील नहीं करना है, ये 36 बार आई, इसका मैंने एवरेज निकाल लिया, अभी आई कि घर जाना है, हमने कहा ठीक है जाओ, कहीं नहीं जाना। फिर चली गई, फिर आई वापस, लेकिन सर मम्मी ने कहा है कि हमें कल शाम को घर पहुंचना है, शाम को घर पहुंचना, अभी जाओ काम करो। क्या किया मैंने एवरेज निकाल के माइनस कर दिया ना। सिग्नल से खेल बर्बाद हो जाओगे, सिग्नल से। सिग्नल तो उल्टा सीधा कुछ भी काम करेगा। इस सिग्नल को मैनेज कैसे करें? सिग्नल को ऐसे मैनेज करोगे, एवरेज निकाल के माइनस कर दो, सारी दुनिया करती है। इलेक्ट्रिकल में तुम लोग डीसी कंपोनेंट निकाल के माइनस कर देते हो, डीसी कंपोनेंट ना निकाल के माइनस करो, पता नहीं वहां क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहां तो नॉइस आनी तय है। ये तो नॉइस ही तो ना है भाई, लड़की पागल तो नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब ये कुछ रैंडम रैंडम तो नहीं डिसीजन ले रही है ना भाई, ये अपना दिमाग लगाती है, उसमें नॉइस है और सोच भी है। कोई ना कोई कारण से तो घर जा रही थी, पापा ने इसको बोला कि तुम जल्दी आ जाओ, ऐसा है, और मुझे जो है कि ये तुम पढ़ नहीं रही हो, लगता है मुझे चेक करना, इसको डर लगा हम घर जाएं। तो ये अपना दिमाग भी लगाती है, नॉइस भी होती है उसमें। सिग्नल में भी ऐसा ही होता है, माइनस कर दो एवरेज। तो यहां से स्टार्ट होता है पॉलिसी ग्रेडियंट विद बेस लाइन। कि बेस लाइन, तो सबसे सिंपल बेस लाइन क्या हो सकती है? एवरेज कर दो। बोलो बोलो। सर वेरिएंस जो निकालते हैं हम, वो जीरो मीन करके निकालते हैं, तो वेरिएंस तो रहने तक भी हाई रहेगा। नहीं, हमने एवरेज माइनस किया है। अगर मैंने किसी चीज से उसका एवरेज माइनस किया तो इससे होगा क्या कि एटलीस्ट यू नो दैट कि इसकी पूरी बात मत सुनो, इतनी ही बात सुनो, और ये आगे ट्रेन होता जा रहा है लगातार। मीन और जीरो हाँ, तो सर यहाँ पे अगर मीन हटा देंगे उससे तो भी वेरिएंस, लेकिन तुम ग्रेडियंट पे नहीं देख रहे हो, चेंज को देखो। वैल्यू जो है भाई, ऐसे तो अगर देखोगे कि किसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके अगर तुम उससे उसका मीन घटा तो शेप तो बनी ही रहेगी, लेकिन उसका डेरिवेटिव कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे एवरेज घटा दिया। तो अब इसकी पूरी वैल्यू तो नहीं देखता हूं ना मैं, ये कुछ भी आके बताता है तो मैं उसमें एवरेज माइनस कर देता हूं। अब सबसे जब एवरेज माइनस होगा तो अगर वहां वेरिएशन था तो डेरिवेटिव में वो उतनी तेजी से चेंज होता नहीं दिखेगा। बट एवरेज इज ओनली वन वैल्यू, मतलब ये पहला उसका आंसर है। पहली बात है कि हमें बेसलाइन घटानी पड़ेगी। व्हाट इज बेसलाइन? कि किसी चीज का एवरेज बिहेवियर क्या है, ऑन एन एवरेज बिहेवियर आपका क्या है। उस एवरेज बिहेवियर को अगर मैं आपसे हटा दूं तो चाहे जितना फ्लक्चुएटिंग सिग्नल हो, ड्यू टू नॉइस बाय द, अब तुम असलियत ही में फ्लक्चुएटिंग हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, समझे ना? वही मैंने कहा था कि अब कोई रैंडम ही बात ही करता हो तो उसकी बात अलग है, क्योंकि वो तो सिग्नल के अंदर नॉइस नहीं, वो खुद सिग्नल इतना ज्यादा रैंडम है। बट वी अज्यूम दैट दिस देयर इज नॉइस बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल इज बिहेविंग रैंडमली। तो मैंने एवरेज वैल्यू, तुम्हारी एवरेज वैल्यू तुमसे घटा दी। हाँ, हाँ, तो जो तुम ऐड कर रहे हो के,
वो मैंने कह दिया दैट इज नेगेटिव ऑफ एवरेज इनिशियली, दैट्स द नेगेटिव ऑफ एवरेज. तो यू subtract average. This is one way by which you can somehow manage the variance RT minus B. Now what can be this B? इस पे पूरी कहानी है अभी, इस पे 2-3 एल्गोरिथम्स हैं, बट पहली बात ये, everything remains to be the same. RT minus B instead of RT, we started to use RT minus B. But what can be this B? What B? हाँ बोलो बोलो बोलो. B will be approximating the average behavior. ठीक है, एवरेज बिहेवियर. सो तुम क्या करो कि सारी ट्रेजेक्टरी उठा लो और उनके रेस्पॉन्सेस रिवॉर्ड्स ले करके एवरेज कर दो, जो वैल्यू आए उससे माइनस कर दो. ये सबसे सिंपल काम है, ऐसा करते नहीं है, लेकिन सबसे सिंपल है. तुम्हारे पास एक टाउ है, एक थीटा है, इसमें तुमने 10 टाउ खेले, 10 का R टाउ 1, R टाउ 2, R टाउ 3, R टाउ 4 कर दिया, 1/10 कर दिया, जोड़ के जो वैल्यू आई वही घटा दी इससे. ठीक, तो एवरेज बिहेवियर ऑफ दैट नोड नहीं आया, दैट ट्रेजेक्टरी आया. बट ऐसा कहते हैं कि ये भी एक बेसलाइन है, सिंपलेस्ट बेसलाइन है, ये नहीं यूज करते, बट हाँ ये यूज की जा सकती है, कुछ ना कुछ तो कम करेगी ही वेरिएंस. दूसरा, ये जो बेसलाइन जो बी है, इसकी ऑब्वियस चॉइसेस क्या है? मैं कहता हूं किसी स्टेट, अच्छा जब मैंने पूरे पे बी ले लिया और सब पे जोड़ के माइनस कर दिया वही एवरेज, तो उसमें फिर है क्या ना कि मैंने किसी नोड को स्पेसिफिकली नहीं देखा. लेकिन अच्छा एक बात बताओ, एक नोड का एवरेज बिहेवियर क्या है? एक नोड ST है, व्हाट इज द एवरेज बिहेवियर ऑफ ST? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट्स एन ऑन एन एवरेज अंडर दिस थीटा, ऑन एन एवरेज इस नोड से कितना कमाओगे? दैट इज VST. तो ऑब्वियस, अगर तुमको मिल जाए कोई बंदा जो कहे मैं बताऊंगा तुम्हें VST, वो है एवरेज, तो वही तो डेफिनेशन ही उसकी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ST पे थीटा या पाई को पकड़ के मैं चला जाऊं, कितना कमाऊंगा ऑन एन एवरेज, दैट इज VST, दैट्स द एवरेज बिहेवियर. मुझे ये भी नहीं पता, मुझे नहीं पता. ध्यान दे, जब मैंने पॉलिसी ग्रेडियंट लाया, कहीं भी आपसे वैल्यू फंक्शन की बात किया, क्यू फंक्शन की बात किया, सीधा थीटा पे चला गया. क्यों? क्योंकि दूसरी स्टेट, दूसरा तरीके की लर्निंग है, इसमें सीधा पॉलिसी स्पेस पे काम कर रहा हूं. पाई और थीटा कुछ क्यू फंक्शन और वैल्यू फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं था. बट डेफिनेशन तो ये कहती है कि अगर मुझे हर स्टेट का ST स्टेट पे खड़ा हूं और रिवॉर्ड टू गो आया RT ST, RT ST आया ना रिवॉर्ड, कितना आना चाहिए? VST. अगर किसी को पता हुई एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अगर ये बराबर हैं तो तुमने ऑप्टिमल डिसीजन लिया, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तुमने ऑप्टिमल बिहेव नहीं किया, जितना दूर है उतना कम ऑप्टिमली बिहेव किया. दूसरा फंक्शन है क्यू फंक्शन, एन एडवांटेज फंक्शन. इसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, लेकिन पहली बात करेंगे VST पे. और एक बंदे ने बोला कि भैया तुम इसकी जगह ले लो RT माइनस VST. RT माइनस B सेम, B में एवरेज ले रहा था, अच्छी बात नहीं थी, B के बदले मैंने एवरेज के बदले मैंने VST कर दिया. अब बोलो क्या कहते हो? VST प्रॉब्लम बताओ इसकी क्या है? इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा. तुम लोग को मैंने दिया 2 मिनट, आप लोग पहले इसको सोच के मुझे बताएंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन में RT सिर्फ रहने दूं तो वेनिला चल रहा था, रिवॉर्ड टू गो, RT माइनस B कर दूं एवरेज बेसलाइन, RT माइनस VST ये बेसलाइन ले रहा है वैल्यू फंक्शन की. बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आ रहा हूं, इसकी प्रॉब्लम आप बताइए.
हाँ बताइए। हाँ हाँ, वो VST नहीं है, अच्छी बात है। तो VST क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि आप क्यू फंक्शन कर ही नहीं रहे हैं, आप वैल्यू फंक्शन लर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास VST नहीं है। तो क्या करें? तो हमको VST लेकिन चाहिए, क्यों? जे थीटा निकालने के लिए, जे थीटा का ग्रेडियंट निकालने के लिए VST चाहिए। तो मैंने एक दूसरा नेटवर्क ले आया। So now instead of having one network which is defined over theta, I am having another network which is defined over phi. Our theta network is a policy network. It is approximating policies for me. This guy is approximating value function for me. और याद करें वैल्यू फंक्शन क्यू फंक्शन वाला फंडा जो है वो एग्जैक्टली DQ1 की तरीके का है. It is nothing but a DQ1 type of network. लेकिन लॉस में अभी आपके सामने उसका भी लिखूंगा, बिकॉज ये तो जे थीटा हुआ किसका, इसका लॉस. ये कैसे ट्रेन होगा? इसको कैसे ट्रेन करेंगे? इसको ट्रेन करने के लिए मुझे जे फाई चाहिए होगा. जे थीटा यही है, बट जे फाई क्या है? जे फाई ये है भाई. आरटी आया, आरटी कहां से आया? आरटी किसने दिया? थीटा ने. थीटा से तुम्हें आरटी मिल गया. ये तुमको कौन दे रहा है? ये फाई नेटवर्क दे रहा है. फाई नेटवर्क का आउटपुट एसटी के लिए. हाउ फार दीज टू थिंग्स आर, उसके एमएससी पर ट्रेन कर दिया. अच्छा ध्यान दो, करना कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं आरटी माइनस VST, ये दोनों आसपास होने चाहिए ना. कैसे हो? तो हमने कहा कि मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हर नोड पे तुम ऑप्टिमली बिहेव करो विद रिस्पेक्ट टू VST. जो निकाल रहा है नीचे वाला, नीचे वाला कह रहा है कि अच्छा तुम्हारा लॉस ये है कि आरटी से तुम कितना दूर हो. इन दोनों को एक दूसरे से ही बांध रहे हैं. ये बताता है जो कुछ भी दिस गाय वॉट एवर ही टेल्स. मैं कहता हूं आरटी से कितना दूर हो, आरटी उस थीटा से आ रहा है. थीटा वाले नेटवर्क में कहता हूं आरटी माइनस VST. तो अगर मेरा ये नेटवर्क अच्छे से ट्रेन हो गया, मेरे आरटी और VST के बराबर होंगे. अगर मेरे आरटी VST के बराबर हैं तो ये वैल्यू कम से कम होती चली जाएगी, ये उसके पास जा रहा है. तो मेरा लॉस जो है बेसिकली आई स्टार्टेड टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, बिकॉज एवरी नोड पे आई एम परफॉर्मिंग ऑप्टिमली. सो मेरे पास दो नेटवर्क आ गए. एक पॉलिसी नेटवर्क आ गया, थीटा से ऑप्टिमाइज पैरामीटराइज्ड है. एक वैल्यू फंक्शन का नेटवर्क आ गया जो कि फाई से ऑप्टिमाइज्ड, फाई से पैरामीटराइज्ड है. मैंने जे थीटा से कहा कि ये सारी चीज मल्टीप्लाई करके आरटी माइनस VST कर देना. बेसिकली हियर व्हाट आई हैव सेड कि भाई तुम ऑप्टिमल बिहेवियर से जितना दूर हो उतना ही तुमको वैल्यू मिलेगा, उतना ही तुमको मैं स्केल अप करूंगा तुम्हारी लॉग प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली बढ़ा रहा हूं. एसटी पे एटी के लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम दोनों कितना पास हो गए, दूर हो. और मैंने कहा कि VST तुम खुद ही गलत हो. तुमने कहा VST तुम एक काम करो, ये दोनों आपस में ऐसा करो कि आरटी के पास होना चाहिए तुम्हें. तो ये भी ट्रेन होगा, वो भी ट्रेन होगा, और धीरे धीरे दोनों एक आर्बिट्रली कहीं होंगे, धीरे धीरे करके आसपास पहुंचेंगे. बहरहाल ये ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है. उस ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा है, एसेंट हो रहा है. रीइंफोर्स एल्गोरिथम विद बेसलाइन, दिस इज द एल्गोरिथम. अगर कोई आपसे पूछे पॉलिसी ग्रेडियंट की कोई एल्गोरिथम, तो वो है रीइंफोर्स विद बेसलाइन यूजिंग V वैल्यू फंक्शन एज द बेसलाइन. ठीक, ये एल्गोरिथम. बाकी चीजें जो मैंने बताई दे आर जस्ट फॉर द आर्गुमेंटेशन एंड फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस. एल्गोरिथम बहुत सिंपल है. पॉलिसी को इनिशियलाइज करो, पॉलिसी नेटवर्क को इनिशियलाइज करो, वैल्यू नेटवर्क को इनिशियलाइज करो थीटा और फाई से. एंड ट्रेजेक्टरी किससे खेलोगे? थीटा से. उससे मत खेल लेना, थीटा से एंड ट्रेजेक्टरी खेल लो. सारी ट्रेजेक्टरीज के रिवॉर्ड टू गो निकाल लो. बहुत ही आसान है. देखो कोई ट्रेजेक्टरी पूरी बन के आगे डिग 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 डिग, किसी भी एक जगह खड़े हो जाओ, रिवॉर्ड टू गो क्या, आगे बढ़ते जाओ, गामा मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना. हर नोड के लिए निकाल लो. अगर तुम्हारे पास 10 ट्रेजेक्टरी हैं और हर ट्रेजेक्टरी में 10 स्टेप हैं, तो कितने रिवॉर्ड टू गो आरटी निकलेंगे?
आर टी टाउ 1, तो टाउ 1 के अंदर R1 टाउ 1, R2 टाउ 2, R2 टाउ 3, R2 टाउ 4 करके एक ट्रेजेक्टरी के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, सबके लिए निकाल के रख लो। ये पॉलिसी ग्रेडियंट का लॉस है। पॉलिसी अपडेट कर दिया, एमएससी निकाल लिया, ये किसका लॉस है? J5 का लॉस है। आपने देखा एक खास बात, यहाँ जे थीटा नहीं लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ जे थीटा लिखा है, क्योंकि जे थीटा निकाल ही नहीं रहा है, सीधा जे थीटा नहीं निकाले, डेल्टा जे थीटा निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे जे थीटा लिख करके कहता है इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, और वो यहाँ आएगा, क्योंकि ये निकाला जा सकता है, उसका वो चीज निकाली नहीं जा सकती, वो मैंने आपको बता दी। और यही लूप में करते रहो। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट फिर से आपको दिख गई, जैसे ही थीटा बदला फिर से ट्रेजेक्टरी बनाने जाना पड़ा। दैट इज ऑन पॉलिसी। इसकी एल्गोरिदम आगे आएंगे ऐसी, सब कुछ दिखने में कुछ सेम ही लगे, पर जरा जरा सा बदलता जाएगा। जैसे अभी इसी एल्गोरिदम में मैं ये आरटी की जगह पे आर टाउ कर दूं और ये हटा दूं, तो रीइंफोर्स एल्गोरिदम हो गई, सिंपल रीइंफोर्स एल्गोरिदम हो गई। आरटी कर दूं, बाकी सब कुछ हटा दूं, सिर्फ आरटी रखूं, डिवाइड टू गो हो गई। आरटी V5 रखा, तो ये भी इसके साथ लगा दिया, अभी घुमा दिया, दैट इज बेसलाइन विद वैल्यू फंक्शन हो गया। लेकिन हमने हर बार रिवॉर्ड जनरेट करना है, ट्रेजेक्टरी जनरेट करानी है। एक बार भी बदला ट्रेजेक्टरी नहीं होनी चाहिए, वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके आगे एडवांटेज फंक्शन आएगा, क्योंकि यहां पे खत्म हो गई दो चीजें हमारी। पहली एल्गोरिथम जो कि डीप क्यू लर्निंग की, दूसरी एल्गोरिथम जो कि पॉलिसी ग्रेडियंट की। ये दो तरीके की एल्गोरिथम, जिसमें DQN जो बेलमैन एनफोर्स करती है, ये जो कि जे थीटा को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर आ गया कि जो दूसरी रीइंफोर्स विद बेसलाइन आ गया, कि वो जे थीटा के बदले J5 भी ले आता है और वैल्यू फंक्शन से बेसलाइन बना देता है, ताकि वेरिएंस वगैरह मैनेज हो जाए। यहां पर ही आपने आके देखा कि यार दो चीजें बन गई हैं इसी एल्गोरिदम में, दो नेटवर्क हो गए हैं। तो इसे एक्चुअली ना एक्टर क्रिटिक टाइप ऑफ एल्गोरिदम, एक्चुअली इसको एक्टर क्रिटिक नहीं कहते हैं, जिसको रीइंफोर्स की बेसलाइन कहते हैं, लेकिन ये भी एक एक्टर और क्रिटिक है। व्हाट इज एक्टर? एक्टर थीटा है, क्रिटिक फाई है। बट एक्टर क्या कर रहा है? एक्टर एक पॉलिसी को एक्ट कर रहा है, और क्रिटिक कह रहा है कि अच्छा ये पॉलिसी रियल से कितनी दूर है, रियल से कितनी दूर है, रियल से कितनी दूर है। बिल्कुल ऐसी तो एक्टिंग होती है ना, जब एक्टिंग करते हैं और उसके सामने कोई खड़ा होकर कहता है अच्छा अरे बनावटी लग रहा है, ये बनावटी लग रहा है, तो बनावटी उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वैल्यू फंक्शन में इस चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आरटी जो कि प्रिडिक्टेड है, या प्रिडिक्टेड ना कह लें, जो कि इससे निकल करके आ रहा है, हाउ क्लोज इट इज विद द एक्चुअल वैल्यू फंक्शन। अरे एक्चुअल के पास पहुंच गया तो नकली सा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको यहाँ वैल्यू फंक्शन मल्टीप्लाई होना है। अगर यहाँ पे वैल्यू फंक्शन से मैं इसको रखूं इस जगह पे, तो इसको पता चलेगा हाँ यार कितना, किसी चीज को कितना बूस्ट करना है। दैट इज द पॉइंट। इसके बाद आता है एक्चुअल एल्गोरिथम एक्टर क्रिटिक की, जिसमें एक्चुअली आप देखेंगे कि एक्टर थीटा रहेगा, फाई फिर से होगा, बट वो वैल्यू फंक्शन के बदले क्यू एडवांटेज फंक्शन या क्यू फंक्शन, क्यू लर्निंग करेगा। क्यू लर्निंग बेसिकली डीप क्यू लर्निंग करेगा, DQN ही करेगा, बट एडवांटेज फंक्शन के थ्रू, विच इज अगेन वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सभी को आगे समझ में? अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वी आर डन। इसके आगे हम लोग मंडे को करेंगे। सुजीत, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, then it is done. No question, then it is done. Thank you.